Hello learners, here I am with a new video for y'all. So today we are going to learn English Bal Bharati of Standard 7. Now let's see what we are going to learn in it. Here. Before we go further, here is a short riddle for you. You have to write your answers in the comment box and then we will move forward to the lesson or poem, whatever we are going to learn today. So I'll read it once for y'all and I'll give you 1 minute to write your answers. ठीक है, 1 मिनट में आपको अपने आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. I am surrounded by 4 bulkhead. You can find me in city as well as in village, in many different shapes and sizes. People live in me. What am I? So start writing your answers directly in the comment box. Then we'll go forward. Okay, I hope you must have got your answers correctly. So the answer is a house. So according to the riddle, a house is surrounded by 4 walls, that is bulkhead. You can find the house in villages as well as in cities also. It's of different kinds, different types of houses you can see around you, different shapes you can see, like buildings, bungalow, then houses, small, big, hut, है ना. You can see many types of and shapes of houses around you. Then house is used by people to live in it. So your answer is house. Now these are some kinds of house you can see, that is hut, wooden house, cottage, villa, apartments. Now you must have got the idea, है ना, थोड़ा सा idea आया होगा what we are going to learn today. So exactly, we are going to learn a new poem from your unit 4, that is 4.4, Home Sweet Home. Now let's see who has written this poem and get acquainted with him. So the poem, we can say the song written by John Howard Payne. Who was he? So he was an American actor, poet, playwright and author who had nearly 2 decades of theatrical career and success in London. तो लंदन में उन्होंने अपना करियर बनाया था थिएटर्स में. थिएटर्स में उन्होंने काम करके अपना करियर बनाया था. नियरली 2 डिकेड्स तक वो थे. 2 डिकेड्स यानी 20 ईयर्स तक उन्होंने थिएटर्स में काम किया था और उन्हें वहीं से सक्सेस मिली थी. वो एक अमेरिकन एक्टर हैं, पोएट हैं, प्लेराइट हैं और एक ऑथर भी हैं. देन he is today most remembered as the creator of Home Sweet Home, a song he wrote in 1822 that became widely popular in the United States and the English-speaking world. तो एक सॉन्ग उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था Home Sweet Home. वो सॉन्ग उन्होंने लिखी थी 1822 में और वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, दैट इज़ लंदन, और हमारी इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में भी बहुत पॉपुलर हुआ था. ठीक है, और होम स्वीट होम की वजह से आज जॉन हॉवर्ड पेन को पहचाना जाता है. वहीं से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली. तो मे बी वो कहीं घर से दूर होंगे, उन्हें अपने घर की याद आ रही होगी. दैट्स वाई ही रोट दिस पोएम टू. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ रिटन एंड हाउ ही हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट होम. So here I'm going to start 4.4, Home Sweet Home. So you can see from here there is apostrophe before mid. ठीक है, ये जो apostrophe है mid में, वो एक शॉर्टकट के लिए हम apostrophe पहले लिखते हैं. ये ओल्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग है. एंशियंट इंग्लिश में हम ऐसे ही मतलब पोएम्स वगैरह जो लिखा जाता था, सॉन्ग्स वगैरह, वो इसी स्टाइल में लिखा जाता था. इट्स काइंड ऑफ अ स्टाइल, एंशियंट स्टाइल, जो ऑथर्स यूज़ करते हैं, पोएट्स यूज़ करते हैं अपने पोएम्स या सॉन्ग्स को कंप्लीट करने के लिए. तो ये सब शॉर्टकट्स हैं. फुल फॉर्म क्या है मिड का? अमिड. ठीक है, लेट्स बिगिन. मिड प्लेजर्स एंड पैलेसेस दो वी मे रोम, बी इट एवर सो हम्बल, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. तो व्हाट द पोएट वांट टू से, कि चाहे कहीं भी चले जाओ, ठीक है, चाहे कितनी भी खुशी वाली, कितनी भी आपको प्लेजर देने वाली, आनंद देने वाली प्लेस पे आप जाओ, चाहे कोई भी पैलेसेस में आप जाओ, मतलब घूमने जाओ या रहने जाओ, आपको आपके घर से प्यारा या आपके घर से अच्छी जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी. चाहे आप पूरी दुनिया क्यों ना घूम लो, रोम यानी घूमना, ठीक है, सो आप कहीं भी घूम लो,
कितनी भी अच्छी जगहों पे घूम लो, यू कैन से शिमला हो गया, महाबलेश्वर हो गया, ऊटी, कश्मीर, ये सारी प्लेसेस है जहाँ पे जाके हमें एक अलग सा सुकून मिलता है। लेकिन जो सुकून, जो माइंड पीस ऑफ माइंड हमें घर पे मिलता है वो हमें और कहीं नहीं मिलता है। ओके, सो द पोएट वांट टू से दैट अ charm from the sky seems to hallow us there, which seek through the world is never met with elsewhere. एक चाम जो हमें स्काई से मिलती है, जो हैलो होती है हम पे, हैलो यानी प्योर, यानी होली प्योर, ठीक है। सो एक ब्लेसिंग्स यू कैन से, हमें आसमान से ऐसा लगेगा एक ब्लेसिंग्स की तरह हमें आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे गॉड्स हैं, जितने भी गॉडेसेस हैं, उनकी जो है उनसे आशीर्वाद मिलती है। ऐसी जगह है वो घर जहाँ पे हम रहते हैं। पूरी दुनिया जो चीज़ चाहती है, जो ब्लेसिंग्स चाहती है, वो हमें आराम से हमारे घर पे रहने से मिल सकती है ना। क्योंकि भगवान जिस घर में हैप्पीनेस रहते हैं, जिस घर में लोग एक साथ रहते हैं, भगवान खुद वहाँ पे उनके साथ साथ रहते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड दिस फ्रॉम योर ग्रैनी एंड ऑल, मतलब जितने भी ओल्ड पीपल हैं वो दे यूज टू से कि जो घर एकदम शांत रहता है या जो घर एकदम हैप्पी चेयरफुल रहता है ना, वहाँ पे उनके साथ भगवान भी स्टे करते हैं। तो एक ऐसी फीलिंग आती है, एक स्ट्रॉन्ग सेफ एंड सिक्योरिटी की फीलिंग आती है आपको अपने घर पे रहने से। तो आपको वो प्लेस और कहीं मिलेगा नेवर। आप कहीं बाहर चले जाते हो, अपने अंकल आंट के घर पे चले जाते हो, लेकिन फिर आपको एक ऐसा फील आता है ना कि हाँ भाई मुझे अब घर पे जाना है, मेरे घर पे जाना है। चाहे आपके अंकल आंट कितने भी अच्छे घर में क्यों ना रहते हो, बट आपका घर इज़ आपका घर ना। You can't stay away from it for a long time. So the poet want to say you that only कि अगर आप कहीं भी चले जाओ, in the end, ठीक है, eventually you will come to your house, you will miss your house. Home sweet home, there's no place like home, oh there's no place like home. So ये जो 2 लाइन्स है वो कोरस लाइन्स, यू कैन से कोरस लाइन्स हैं, ये हर स्टैंजा पे आपको रिपीटेड मिलेंगी, ठीक है। और आप सॉन्ग तो सुनते ही होंगे, आप न्यू जनरेशन पीपल हो, यू मस्ट लिसन टू सॉन्ग। तो कैसे उसमें जो कुछ लाइंस होते हैं रिपीटेडली होती हैं हर एक स्टैंजा पे, वैसे ही ये भी है, क्योंकि ये एक सॉन्ग था जिसे हम पोएम की तरह पढ़ रहे हैं। नाउ आई एम बिगिनिंग विद सेकेंड स्टैंजा। एन एक्साइल फ्रॉम होम स्प्लेंडर डेजल्स इन वेन, ओ गिव मी माई लोली थैच्ड कॉटेज अगेन। जब आप घर से बाहर जाते हो, एग्जाइल यानी घर से दूर रहना, हाँ, एग्जाइल निकल जाना, घर से दूर रहते हो। स्प्लेंडर यानी बहुत अच्छा, लुभावना। डेजल्स होते हैं वो वेन हो जाते हैं, मतलब आप कहीं भी घूम लो, कहीं भी चले जाओ, वो सब एकदम वेन है, वेस्ट है, नन ऑफ यूज़ है, ठीक है, वो नन ऑफ यूज़ है। और आपको लास्ट में क्या चाहिए रहता है, आपका छोटा सा प्यारा सा जैसा भी घर है वो आपको चाहिए रहता है। तो यहाँ पोएट भी वही चाहता है कि जब वो घर से दूर था तो वो बहुत सारी जगहों पे घूमा, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन अपने घर जैसी बात उसे कहीं नहीं मिली। और वो चाहता था कि भले ही छोटा सा है, भले ही थैच्ड हाउस है, थैच्ड कॉटेज यानी यू कैन सी इट्स मेड अप ऑफ स्ट्रॉ और स्लोपिंग रूफ होते हैं उसके, ठीक है। यहाँ पे 2 पिक्चर्स मैंने अटैच किया आपके लिए, थैच्ड कॉटेज, ठीक है। तो वैसे कॉटेज है, भले एकदम सिंपल सा घर है, पर वो आपका घर है। यू फील सिक्योरिटी, सेफ ओवर देयर। तो आप एंड में अपने घर पे ही आते हो, घर पे ही आना चाहते हो। द बर्ड सिंगिंग गेली दैट कम एट माई कॉल, गिव मी देम एंड द पीस ऑफ माइंड डियरर देन ऑल। तो बर्ड्स जो होती हैं वो कैसे सिंग करते हैं, गेली यानी हैप्पीली, चेयरफुली। जैसे बर्ड्स सिंगिंग करती हैं, वहाँ पे एक मधुर सी संगीत आपको सुनाई देती है अपने घर के आसपास जहाँ भी आप रहते हो। मेरे एक कॉल पे, मैं ऐसे बुलाता हूँ, वो मेरे एक कॉल पे आ जाती हैं। सो मुझे वो सब चाहिए, मुझे वो सब वापस चाहिए, जो मुझे मन की शांति मुझे घर पे चाहिए, जो सबको प्यारी होती है ना। किसी को भी शोर शराबा पसंद है क्या? नो वन वांट्स हसल बसल इन देयर लाइफ, है ना। नो वन वांट्स एनी स्क्रीमिंग, एनी नॉइजेस, ठीक है। एवरीवन वांट पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। तो जो मन की शांति हमें एक सुकून सा मिलता है घर पे, वो उसे चाहिए, वो सब कुछ उसे चाहिए वापस। Home, sweet home, there's no place like home, oh there's no place like home. I gaze on the moon as I thread the drear wild,
and feel that my mother now thinks of her child. मैं मून को देख रहा था, गेज यानी टू सी. सो जब मैं मून को देख रहा था एक अजीब सा डर मेरे मन में आया. मैं ये फील कर रहा था कि मेरी मम्मी जो होंगी वो सोच रही होंगी मेरा बेबी, मेरा चाइल्ड, मेरा जो बच्चा है वो कहाँ होगा. ये ना कॉमन सी चीज़ है. हर मम्मी लोग है ना अपने बच्चों की परवाह तो करती ही करती हैं, चाहे जो हो जाए, चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, चाहे बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो. मम्मी जो होती है वो हमेशा अपने बच्चों को प्यार ही करती है. तो वो जो प्यार, वो जो केयर, वो सब कुछ मिलता है, वो जो एडोरेशन एंड ऑल, एडमायरेशन, सब 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 आपको कहाँ मिलेगा, एक घर में देखने मिलेगा. तो यहाँ पे पोएट क्या सोचता है, पोएट बोलता है कि मैं जब मून को देखता हूँ तो एक अजीब सा डर मेरे मन में आता है कि मेरी मम्मी क्या सोच रही होंगी, मेरी मम्मी मेरे बारे में सोच रही होंगी कि मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा, अच्छे से होगा नहीं होगा. ये सब कुछ उसे मून को देखकर याद आता है, उसकी मम्मी याद आती है. As she looks on that moon from our own cottage door, through the woodbine, whose fragrance shall cheer me no more. Home, home, sweet, sweet home. There's no place like home. Oh, there's no place like home. तो जो मून है उसे देखकर तो पोएट को अपनी मम्मी की याद आई, पर उसे एक चीज़ और याद आई कि मेरी मम्मी भी आज मून को देख रही होंगी अपने कॉटेज के डोर से. वो मुझे मिस कर रही होंगी. और वहाँ पे जो वुड बाइन्स होते हैं ना, जो पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं जो खुशबूदार रहती हैं, फ्रेगनेंस देती है, चंदन एंड ऑल, वो जो फ्रेगनेंस है वो मुझे अब चेयर करने के लिए और कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरे घर पे मिलती है और मैं घर से दूर हूँ. तो मुझे वो सब कुछ अब नहीं मिलेगा और ना ही मिल सकता है अभी, क्योंकि मैं अभी वहाँ पे नहीं हूँ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाउ स्वीट does to sit neath a fond father's smile, and the cares of a mother to soothe and beguile. तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है अपने पापा के पास. यहाँ पे टस जो है ना वो इट इज़ के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, यहाँ पे भी देखो एपोस्ट्रॉफी है, और ये जो टस है वो एंशियंट इंग्लिश वर्ड है टस, जिसका मतलब होता है इट इज़. ओके, हाउ स्वीट इट इज़. कितना अच्छा लगता है ना अपने पापा के साथ बैठने का. अपने पापा कितने प्यारे रहते हैं. पापा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा आपकी केयर करते हैं. एज़ वेल एज़ आपकी मम्मा कितना प्यार करती हैं. एक अजीब से सुकून मिलता है आपको मम्मी के पास जाके. आप कितनी भी मस्ती कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो, लास्ट में जब आप मम्मी के पास जाते हो तो एक अजीब सा सुकून, एक अलग सा फील आता है. वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, आपके घर पे. बिगाइल यानी कंफर्ट. ठीक है, वो कंफर्ट, सूदनिंग और कंफर्ट, वो सब कुछ आपको अपनी मम्मी से मिलता है. मम्मी जो प्यार देती हैं, केयर्स करती हैं, फिर आपको खाना खिलाना, ये वो सब एकदम मतलब प्रोटेक्टिव है ना, एकदम प्रोटेक्टिव फील करना, कंफर्ट फील करना. जब आप कहीं पर रहते हो आपको डर लगा रहता है, अरे मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. लेकिन जब आप घर पे रहते हो तो वहाँ पे आपके पापा रहते हैं, वहाँ मम्मी रहती है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं. उनके साथ आप बैठते हो, बातें करते हो. फिर आप अपने सिबलिंग्स को कैसे भूल सकते हो, इतनी सारी मस्ती एंड ऑल, सब कुछ आपको आपके घर पे ही मिलेगा. तो ये सब चीज़ें जो पोएट है वो मिस कर रहा है. क्यों? बिकॉज ही इज़ नॉट एट हिज होम राइट नाउ, ही इज समवेयर एल्स. तो ये वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि घर जैसी जगह और कहीं नहीं मिलेगी आपको. लेट अदर्स डिलाइट मिड न्यू प्लेजर्स टू रोम, बट गिव मी द प्लेजर्स ऑफ होम. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. There is no place like home. ठीक है, तो यहाँ पे आते ही पोएट क्या बोलता है कि ये जो प्लेजर मिलता है ना घूमने का एंड ऑल, यहाँ वहाँ घूमते हैं और नए नए सुकून मिलते, डिलाइट, हैप्पीनेस मिलता है, वो सब मुझे नहीं चाहिए. आप किसी और को दे दो. मुझे तो मेरा घर चाहिए, मुझे वहीं पर सुकून मिलेगा, वहीं पर खुशी मिलेगी. सो मुझे मेरा घर दे दो, और ये जो घूमने का जो प्लेजर है प्लीज़ वो किसी और को दे दो, मुझे नहीं चाहिए. अब मुझे मेरा प्यारा सा छोटा सा घर वापस चाहिए, क्योंकि घर जैसी जगह और कोई नहीं होती है. ठीक है. टू दी I'll return, overburdened with care. The heart's dearest solace will smile on me there. सो जैसे ही मैं वहाँ
पे वापस आऊँगा, जैसे मैं रिटर्न होऊंगा, जैसे मैं वहाँ पे थी या नहीं हूँ, तो जैसे ही मैं वहाँ पे रिटर्न होऊंगा वहाँ पे मुझे केयर मिलने लगेगी, ओवर बर्डन विथ केयर, मैं एकदम ओवर बर्डन हो जाऊँगा केयर से, है ना। आप जैसे घर पे आते हो, मम्मी कितना प्यार से आपको देखती है, मम्मी बोलती है अरे बेटा कहाँ गए थे, अच्छे से किया, सब कुछ अच्छा सा हुआ, कितना पतला हो गया। अगर बच्चा दूर रहता है कुछ दिन के लिए तो मम्मी बोलती है अरे कितना पतला हो गया, चल मेरे साथ, मैं तुझे अब 2 दिन में मोटा कर दूँगी खिला पिला के, है ना। सो वो सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ऑब्वियसली आपको घर पे मिलेंगी। सोलेस, कंफर्ट, स्माइल, ये सब कुछ एक सुकून, है ना। जो हार्ट डियरेस्ट सोलेस विल स्माइल ऑन मी दे, ठीक है, जो दिल को मतलब आपको देखते ही जिसको स्माइल आ जाएगी, वो कौन है, एक ही पर्सन है, आपकी मम्मा। आपकी मम्मा जैसे ही आपको देखेगी वो एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी खुशी उनको होगी कि अरे मेरा बच्चा घर आ गया। और उनको देखकर जो आपको खुशी मिलेगी ना, आई स्वेयर वो आपको और कहीं और कोई भी चीज़ देखने से नहीं मिलेगी। चाहे आप कहीं भी कितनी भी अच्छी अच्छी जगह कितना भी घूम लो, बट आपके घर जैसी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। यही आपको पोएट समझाना चाहते हैं। द थिंग इज पोएट वांट टू मेक यू लर्न। No more from that cottage again will I roam. Be it ever so humble, there's no place like home. Home, home, sweet, sweet home. There's no place like home. There's no place like home. तो वो कहते हैं कि अब मैं उस कॉटेज में अगर वापस गया, वापस जा रहा हूँ, वापस जाऊँगा, तो वापस वहाँ से तो कभी नहीं निकलूँगा यहाँ वहाँ घूमने के लिए, यहाँ वहाँ रोम करने के लिए, रोम यानी घूमना, ठीक है। सो वहाँ घूमने के लिए मैं कभी नहीं निकलूँगा। मेरा छोटा सा है, हम्बल है, मतलब हम्बल सिंपल है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, एकदम लग्जरियस नहीं है, सारे लग्जरी नहीं मिलते, लेकिन जैसा भी है, मेरा प्यारा घर है, मैं वहाँ पे खुश हूँ अपने पेरेंट्स के साथ एंड ऑल। सो ये थी पोएम जो लिखी थी जॉन हॉवर्ड पेन ने। यू मस्ट हैव लाइक इट। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, कभी भी वेरेवर, हर किसी को चांस नहीं मिलता है अपने घर पे रहने का, है ना। सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन आते हैं, सोल्जर्स। आपको पता है सोल्जर्स बॉर्डर्स पे रहते हैं, दे स्टे एट द बॉर्डर टू मेक श्योर कि हम सिक्योर रह सके, हम सेफ रह सके। तो वो हमेशा अपने घर पे स्टे करने का उनको चांस नहीं मिलता, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो यू शुड थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ लकी पर्सन, है ना, कि आपको तो वो खुशी मिल रही है, आपको वो सुकून मिल रहा है, आपको चैन मिल रहा है, आप शांति से अपने घर में सो सकते हो, ऑल बिकॉज ऑफ देम। तो आपको अगर मिल रहा है तो यू शुड यूज़ इट फुल्ली, है ना। आपको अगर चांस मिला है घर पे रहने का, देन श्योर मेक इट श्योर कि आप खुश रहो, आपके साथ जो रह रहे हैं वो खुश रहें, क्योंकि जहाँ पे खुशियाँ रहती है वहीं पर सब कुछ अच्छा होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पे आप अच्छे से रहोगे, अपने घर पे खुशी खुशी रहोगे, तो ही सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपने घर पे रहो, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, और अपने घर से ज़्यादा प्यारा और कुछ नहीं होता। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस पोएम। अगर अच्छा लगे तो श्योरली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, यू कैन कमेंट इट ऑल्सो। एंड कोई पार्ट या कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, देन ऑल्सो यू कैन कमेंट इट, मैं देख लूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।